الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، کافی سارے احباب کے التماس کرنے پر آج بندہ نچیز آپ کو اپنا ایک زمانہ طالب علمی کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک اختتام پذیر ہوا، یعنی کہ یہ تعلیم کا سلسلہ جو کہ 2012 سے شروع ہوا تھا، اس کے بارے میں چند ایک الفاظ ویڈیو میں ریکارڈ کرانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تاکہ اس دینی سفر کی وجہ سے کتنی مشکلات پیش آئیں یا پھر اس کے اندر کن مسائل کا ہمیں سامنا ہوا اور اس کے ہمیں کیا فوائد و ثمرات ملتے ہیں، تاکہ ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، والدین کی دعاؤں اور کوششوں سے الحمدللہ یہ دینی سفر تقریباً 2005 سے شروع ہوا، جس میں ہم قرآنی تعلیم، جس کو ہم بولتے ہیں چھوٹا سا قاعدہ الف با تا سا سے شروع ہوا۔ جس طرح کے عام طور پر گھر کے قریب جو مساجد ہوتی ہیں ان میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر کبھی پڑھائی کے لیے چلے گئے، کبھی نہ گئے، سکول کی اس طرف بھی توجہ تھی، پھر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پڑھنے کے لیے گئے، تو اس وقت میں نے پہلے دن کے اندر ہی آدھا قاعدہ استاد محترم کو سنا دیا تھا۔ جب میں آدھا قاعدے تک پہنچا تو استاد محترم نے مجھے روک کر یہ حکم دیا کہ کل گھر سے قرآن کریم آپ اٹھا کر لائیے گا اور اپنے والدین سے اجازت طلب کیجئے گا، میں آپ کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں بھی خوشی محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام حفظ کرنے کی دل کے اندر ایک لگن پیدا ہوئی۔ جب میں دوسرے لڑکوں کو جو پہلے سے پڑھ رہے تھے دیکھتا تھا کہ 2 سپارے 3 سپارے وہ منزل اور ایک سپارہ سب کی سناتے تھے، دل میں رشک پیدا ہوتا تھا کہ کاش کہ کبھی میں بھی اس طرح قرآن کریم پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ تو پھر میں اگلے دن اپنی والدین کی اجازت سے قرآن کریم لایا، وہ بھی خوش ہو گئے اور یہ قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ تقریباً 18-20 سپارے حفظ کر کے اس جگہ سے چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں دیہات سے ہم ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر چلے گئے۔ وہاں پر یہ قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، جس میں لئیے کہ مشہور و معروف قاری صاحب، قاری محمد غلام اکبر صاحب، انہوں نے ہمیں یہ قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ ڈیرہ غازی خان چوک چرٹا کے اندر ایک مشہور مسجد، جامع مسجد اللہ والی بابا نسیم اللہ سیفی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر یہ ہمارا تعلیمی سلسلہ رہا۔ تقریباً عرصہ 2 سال کے اندر یہ قرآن کریم کی تعلیم مکمل ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 3 مہینے ہم گھر رہے، کیونکہ رمضان شریف سمیت 3 مہینے رہتے تھے۔ اس کے بعد یہ درس نظامی یعنی عالم کی کلاس کا جو کورس ہے وہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں 3 مہینے گھر رہنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد پھر ہم استاد قبلہ غلام عمر سلیم صاحب کریمی کی
मार्फत से हासिलपुर के अंदर उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती बशीर अहमद साहब फिरदौसी साहब के पास पढ़ने के लिए चले गए। ये हासिलपुर ज़िला बहावलपुर पाकिस्तान की तहसील है, लिहाजा उसके अंदर ये हमारा तालीमी सिलसिला 2012 के अंदर दरस निज़ामी से शुरू हुआ। अब उस वक्त तालीम का आलम ये था, पहले दिन मुझसे मोहम्मद काशिफ भाई जो उस वक्त नाज़िम आला भी थे और छठे साल के अंदर पढ़ रहे थे, उन्होंने सवाल किया था कि तुम लोग क्या पढ़ोगे। तो उस वक्त कुछ भी पता नहीं था कि क्या पढ़ाया जाता है। फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो हम पढ़ेंगे, हमें कोई पता नहीं है। दरस निज़ामी यानी आलिम की क्लास के लिए हम पहली मरतबा पहले ही मदरसे के अंदर आए हैं। खैर, फिर हमें बताया गया कि आपको पहले साल फ़ारसी पढ़ाई जाएगी। फ़ारसी एक मुस्तकिल तौर पर ज़ुबान भी है और फ़ारसी के अंदर काफ़ी सारी हमारे बुज़ुर्गान दीन की किताबें हैं, पढ़ाई जाती हैं, और बड़ी बड़ी जो अरबी की किताबें हैं उनके हाशिए और शुरूहात वगैरह भी फ़ारसी के अंदर मौजूद हैं। और ये एक बड़ी ही बेहतरीन किस्म की ज़ुबान है जो कि एक आलिम दीन के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। इसलिए तकरीबन जो कि पुराने तरीके पर निसाब पढ़ाया जाता है उसमें पहले साल के अंदर फ़ारसी तलबा को ज़रूर पढ़ाई जाती है। फिर ये हमारा सिलसिला फ़ारसी से लेकर चलता रहा। अरसा 6 साल के अंदर हमने वहाँ हासिलपुर ज़िला बहावलपुर के अंदर मदरसा जामियातुल फिरदौस में ये मौकूफ़ अलैह मुकम्मल किया। नाजरीन, मैं आपको ये तारुफ़ कराता चलूँ, मौकूफ़ अलैह हमारा ये इल्मी एक स्टेप है, यानी दौरा हदीस से पहले जो किताबें मदारस के अंदर निसाब में पढ़ाई जाती हैं उनको मौकूफ़ अलैह कहते हैं। यानी दौरा हदीस अभी नहीं हुआ, बाकी जो उस मदरसे के अंदर किताबें पढ़ाई जाती थी वो अरसा 6 साल के अंदर हमने अपनी क्लास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल की। फिर उसके बाद हमारा शौक़ हुआ कि हम दौरा हदीस के बजाय फ़नून की किताबें, यानी जो किताबें हम फ़न पढ़ चुके थे उनमें मज़ीद दस्तरस हासिल करने के लिए, मज़ीद अपने इल्म को पुख्ता करने के लिए किसी बहुत ही बड़े मशहूर और नामवर आलिम दीन, किसी बड़े शेखुल हदीस के पास चले जाएं जो फ़नून के अंदर महारत हासिल रखता हो। फिर हमें मुख्तलिफ़ तलबाए किराम के साथ, असातिज़ा किराम के साथ मशवरे का मौका भी मिला। फिर हमारा इरादा बना कि हम ज़िला जेलहम के अंदर चले जाएं। वहाँ पर जामिया नुशाइया के अंदर बड़े ही मशहूर व मारूफ़ असातिज़ा किराम मौजूद हैं जो कि बंदियालवी तरीके के मुताबिक फ़नून पढ़ाते हैं। वहाँ पर हमें काफ़ी सारी ये इल्मी एक ख़जाने वाली दौलत जो है वो मिल सकती है। फिर ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ। जेहलम का रास्ता हमने देखा हुआ नहीं था, पता भी नहीं था कि एक जीटी रोड होता है और एक मोटरवे होता है। खैर, मेरे अब्बू ने मेरे मामू को कॉल करके वो रास्ता पूछा, करते कराते हम सरजमीन जेहलम के अंदर पहुँच गए। वहाँ पर एक हफ्ता तकरीबन रेस्ट करने के बाद क्लासें शुरू हुई और ये सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे जेहलम के अंदर ज़िंदगी में पहली मरतबा इमामत कराने का भी मौका मिला, यानी कि लोगों के साथ एक वास्ता ताल्लुक़ बना और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 महीने जेहलम में इमामत भी कराई और साथ साथ अपनी किताबें भी पढ़ते रहे। जब हमारा साल इल्मी मुकम्मल हुआ उस वक्त फिर मैंने जेहलम वाले लोगों को अल्लाह हाफिज़ करते हुए वो जगह छोड़ने का इरादा किया। बड़ी ही मोहब्बतों से उन लोगों ने नवाजा। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आना जाना भी है, शादी गमी भी है। खैर, वो सिलसिला चलता हुआ। जब फिर 1 साल मुकम्मल हुआ फिर हमने अगला साल वही फ़नून यानी उनमें मज़ीद पुख्तगी हासिल करने के लिए गोजरावाला जाने का इरादा किया। वहाँ पर एक मशहूर व मारूफ़ हस्ती उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस किबला मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल्लाह साहब बड़े ही मशहूर व मारूफ़ हैं फ़नून पढ़ाने में, उनके पास हमें जाने का मौका मिला। अरसा 2 साल के अंदर हमने वहाँ उनके पास मुख्तलिफ़ फ़नून भी पढ़े। काफ़ी सारी किताबों के अंदर उन्होंने हमें मुख्तलिफ़ मकामात से अपनी इल्मी महारत के साथ सबक पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। दूसरे साल में हमने वहाँ पर दौरा हदीस भी किया
साथ साथ कुछ किताबें भी उनसे हम समाअत करते रहे। उसके बाद फिर हम जैसे ही हमारा दौरा हदीस मुकम्मल हुआ, फिर अगला साल हमने कराची जाने के लिए इरादा किया ताकि वहाँ पर तखस्सुस फिल फ़िक़्ह अल इस्लामी यानी कि अल मारूफ मुफ्ती कोर्स करने का इरादा किया। ये पढ़ाई के जितने भी हमारे स्टेप थे उनमें हमारा अपने वालिद मोहतरम के साथ हर मौके पर हर मोड़ पर मशवरा होता था। घर जब हम छुट्टियों में जाते तकरीबन रात के 2-2 बजे तक हमारी तालीम की बातें चलती रहती और सोचते रहते कि अब कहाँ पढ़ना चाहिए हमें, और वालिद साहब को हम ये बताते रहते कि वहाँ पर पढ़ाई इस तरह की है, वहाँ पर ये सहूलियात हैं, इस तरह के मामलात हैं। खैर हम फिर 2 साल के लिए कराची चले गए। वहाँ पर मुफ्ती कोर्स जिसको हम अपनी ज़ुबान में यानी इल्मी ज़ुबान में तखस्सुस फिल फ़िक़्ह अल इस्लामी कहते हैं, ये एक स्पेशलिस्ट कोर्स होता है जिसमें हर आलिम दीन को फतवा देने के लिए तैयार किया जाता है और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये मुफ्ती कोर्स करवाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत ही मशहूर व मारूफ हस्ती जो कि तखस्सुस पढ़ाने में यानी मुफ्ती कोर्स करवाने में और फतवा लिखाने में पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अपना नाम रखते हैं, मशहूर व मारूफ हैं, उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती वसीम अख्तर अल मदनी साहब, जिन्होंने हमें बड़ी ही मेहनतों और कोशिशों से और अपना एक बेपाया तजर्बे से ये मुफ्ती कोर्स पढ़ाया। और साथ साथ किबला शेख साहब उस्ताद अबू बकर सिद्दीक अशाज़ली साहब ने हमें अपने इस मुफ्ती कोर्स के साथ साथ हमें तसव्वुफ़ कोर्स भी करवाया, यानी कि हमें एक आते वक्त खिलाफत भी अता फरमाई, यानी पीरी मुरीदी करने का भी तरीका सिखाया, ताकि ये जो जाहिली लोग हैं और अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो गद्दियों पर सवार हो चुके हैं, इनको उतार कर हकीकी जो आलिम दीन है वो जाकर इस मनसब को संभालें और हमारा बुजुर्गान दीन से जो तरीका आ रहा था उसको दोबारा एक नया रास्ता दिया जाए, ताकि लोग जो है वो जिहालत से गुमराही से हट कर आलिम दीन से जब वो तसव्वुफ़ सीखेंगे उनको सही तौर पर अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा। ये सिलसिला तकरीबन 12-14 साल हमारा तालीम के अंदर चलता रहा। 2005-7 से हम शुरू हुए और 2023 के अंदर हमने आकर ये दीनी तालीम का सिलसिला पाए तकमील तक पहुँचाया, और हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इल्म दीन पढ़ने का मौका अता फरमाया। ये तालिब इल्मी यानी सारी ज़िंदगी बंदा इल्म सीखता रहता है, तालिब इल्म ही रहता है, और ये हमारे उस्तादों का भी तरीका है, वो अपने आप को तालिब इल्म बोलते हैं। हम भी इंशाअल्लाह तालिब इल्म रहेंगे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर एक जिस तरह बंदा अपने उस्ताद के सामने बैठकर तालीम हासिल करता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुफ्ती कोर्स में जाकर इख्तिताम पाज़ीर की, और 2023 तकरीबन फरवरी के अंदर हमारी सालाना दस्तार बंदी हुई, हमें जुब्बा और दस्तार से नवाजा गया। ये अल्लाह ताला का हम पर ख़ास फजल हुआ है। नाजरीन, मैं आपको अब ये तो नहीं बता सकता इस दीनी तालीम में ये कितना हमें मुश्किलात का सामना हुआ और क्या क्या हमें मसाइल आए। ये एक ऐसा सिलसिला है कि अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे को किसी इनाम से नवाजता है तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला बंदे पे इम्तिहानात भी डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बड़े ही एहसानात हैं, लिहाजा बात ज़रा लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो हम ये बताएंगे कि हमें दीनी तालीम के अंदर किन मुश्किलात का सामना हुआ, फिर हमें आगे जो मदारस आगे बनाने हैं या लोगों को तालीम देनी है उनमें उन मुश्किलात को कम किया जाए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो दीन पढ़ने की तलब रखते हैं, शौक़ रखते हैं, उनको उन मसाइल से बचाया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमारा ये दीन पढ़ना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हमें आने वाले ज़माने में दीन मतीन शरीफ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।